Now that's for human genome project, two methodologies approach are given, right? First approach, like think about that scientist की meeting है ना? So in that two approaches, अगर हमें human genome को sequence करना है, तो thought is like which one? कि हम इतना ही part reveal करें that can convert to, that can transcribe to mRNA, yes or no? जो transcribe नहीं कर रहा है, तो we should not go into that detail. So one of the concept approach is this one. We have to that sequence those genes which forming RNAs, which forming what? RNAs. And other blind approach ये बोल दिया कि express करे या ना करे, we have to sequence all genes, whether it's a coding or non-coding, right? Later on we will assign that कि किसका क्या role है, right? So for that, here the first two method, again this question you have to prepare for MCQ, this topic you have to prepare for MCQ as well as 2 marks question. First, this method involves two major approaches. One approach focused on identifying all the genes that are expressed as RNAs, right? So if those are expressed as RNA, first concept approach ये आया था कि सिर्फ इतना ही वर्क करे जिससे RNA बनता है, right? So that approach, the word is given express sequence tag. ये approach को क्या नेम दिया है? Express sequence tag. Express sequence tag or another name shortly we call EST. EST full form? What is this approach EST? Meaning only the express DNA part which forms what? RNAs, that should be sequenced, right? Next one, the other took the blind approach of simply sequencing the whole set of genome that coordinated all the coding as well as which one? Non-coding sequences, and later assigning different regions in the sequence with their functions. So that approach we call sequence annotation. ये approach को क्या बोलेंगे हम? Sequence annotation. Repeat this. This approach we call sequence annotation. First approach, express sequence tag. Second approach, sequence annotation. Which one, in which approach that entire whole genome sequence in that later on they will assign, right, their role कि ये part का क्या function है, coding है, non coding है, like that. And earlier approach is a which one? Express sequence tag, meaning what part of DNA should be sequenced? Those expressed as RNAs. That's why name given express sequence tag. An entire DNA को करना है, that is which one? Sequence annotation. बोलिए यहाँ पे पहले clarity है. Now the next one by one step, right? For that, for sequencing, second approach, that is the most appropriate approach, इसी के ऊपर further work हुआ. So first, for sequencing, the total DNA from a cell is isolated. Isolation meaning what? Extract करना, purify, right? Cell is made up of so many organic molecules or only DNA? विचार दे. Organic molecules बोल रहे हो, right? Proteins, lipids, sugars, RNAs, isn't it? And this DNA. So now first we have to digest all these molecules, right? That is which one? Proteins के लिए क्या use करना? Protease, RNAs, carbohydrates, lipase, like that, right? DNAs use करना चाहिए? नहीं, वो हम already we have learned every MacLeod and McCarthy experiment में. Clear? So now here that's the first DNA extract from a cell. First step ये है isolation of DNA. Isolation of DNA. Second step, that converted into random fragments relatively smaller size. DNA is a long polymer, right? See, यहाँ पे हमें इंस्ट्रूमेंट्स, मशीन्स की हेल्प लेनी पड़ेगी या नहीं? यस, तो मशीन्स की एक लिमिटेशंस होती है. मशीन की भी एक रीडिंग की क्या होती है? हमारे भी है ना, आपकी नहीं है रीडिंग की लिमिटेशन है ना? सेम वे ये मशीन की भी रीडिंग की क्या होती है? लिमिटेशन.
सो लॉन्ग पॉलीमर, राइट, इसको रीड करना, एनालाइज, दैट्स डिफिकल्ट. सो टू मेक फर्स्ट डीएनए, फर्स्ट टेक आउट द डीएनए एंड देन डीएनए के रैंडम फ्रेगमेंट्स करने. क्या करने हैं? रैंडम फ्रेगमेंट्स, राइट. डीएनए के क्या करने हैं? फर्स्ट रैंडम फ्रेगमेंट्स. नाउ आप मुझे ये बताइए कि डीएनए इन दैट only one, that's the DNA sample is enough to understand this entire human genome. See one thing, अगर एक ही डीएनए सैंपल पे मैं वर्क कर रही हूँ कि that's in that 100% chances are that I will get the success ratio within that. No, right? So every time actually एक step यहाँ पे होना चाहिए, वो missing है, that first isolation of DNA from single cell. सिंगल सेल भी मिल जाए वो इनफ है, बट बाय यूजिंग एक मशीन है या फिर क्लोनिंग सेक्टर बोलिए, तो इससे फर्स्ट डीएनए है, राइट. डीएनए को क्या करना है? फ्रेगमेंट्स करने के बाद हर एक फ्रेगमेंट का क्या होता है? एम्प्लीफिकेशन. क्या होता है? एम्प्लीफिकेशन. रिमेंबर, हर एक फ्रेगमेंट का क्या होगा? एम्प्लीफिकेशन. सो over here, first one, first that is human cell. From the nucleus genetic material is taken outside. Next is that entire DNA. फिर उसके क्या किया है? एक्चुअली मल्टीपल कॉपीज, राइट. टेक्स्ट बुक लाइन्स में बाद में करते हैं, फर्स्ट डायग्रामेटिक एक्सप्लेनेशन. नाउ नेक्स्ट इज विच वन? दैट total genomic DNA, many copies of say multiple copies are formed, right? And then by using certain enzymes, right? Certain enzymes, वो enzymes को हम बोलते हैं restriction endonuclease enzyme. Which enzyme? Restriction endonuclease enzyme. Repeat. Restriction endonuclease enzyme. By using this, there are also so many types of restriction endonuclease enzyme. वो क्या होते हैं, कौन सी सीक्वेंस पे वर्क करते हैं, कहाँ पे वर्क करते हैं, दैट वी विल लर्न इन बायोटेक्नोलॉजी पार्ट, राइट. दैट इंफॉर्मेशन डिटेल गिवन इन बायोटेक्नोलॉजी. सो राइट नाउ रिमेंबर कि डीएनए लिया, राइट. डीएनए इन दैट डीएनए को किससे ट्रीट किया है? विद द हेल्प ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम. सो इट कट्स इनटू मैनी फ्रेगमेंट्स, राइट. फ्रेगमेंट्स ऐसे कट होंगे फर्स्ट एज एंड व्हेन द फ्रेगमेंट्स आर फॉर्म. Now this each fragment, right? Imagine कि आपके पास एक ही डीएनए है, वो एक ही डीएनए का आपने फ्रेगमेंट किया with the help of what? With the help of what? Restriction endonuclease enzyme. Now each fragment, right? Each fragment that should be amplified by using the host, right? Meaning यहाँ पे दो host use किए हैं. One is a bacteria, other is a yeast. One is a which one? Bacteria, other is a yeast, right? As I told you कि like अगर मुझे इंसुलिन बनाना है तो ह्यूमन के पैंक्रियास पे एवरी टाइम वर्क नहीं करेंगे. So for that, what things actually need? So first, that's we have the sequence. So this is our desired piece of DNA which code for the insulin, right? Now next, bacteria. Bacteria के अंदर you know that's a plasmid. Yes or no, right? So now plasmid first taken outside. This is the part of biotechnology because here we are using techniques, right, to treat this organism. So now this is the which field actually? Biotechnology, right? So in that this is the organism bacteria. उसमें से हमने क्या लिया है? Plasmid, right? Plasmid in that plasmid में ORI site होगा कि नहीं होगा? होगा, right? See in plasmid अगर ये that's a piece of DNA which code for the insulin, ये डायरेक्टली मैं इकोलाई में इंसर्ट कर दूं, राइट? तो क्या अपने आप रेप्लिकेट नहीं हो सकता? यस और नो? डीएनए ही तो है. यस और नो? नहीं है तो क्यों नहीं, वो मुझे बताओ. प्लाज्मिड में अभी कुछ नहीं करना है मुझे, बट जस्ट मैंने ह्यूमन इंसुलिन डीएनए का जो मेरे पास एक सीक्वेंस है, दैट सीक्वेंस, दैट फ्रेगमेंट इंसर्टेड डायरेक्टली इनटू द बैक्टीरिया, तो क्या वो अपने आप रेप्लिकेट होगा कि नहीं होगा?
और नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा? यस, दिस फ्रेगमेंट डज नॉट हैव व्हाट? ORI साइट. जिसके पास ORI साइट होगा वहीं पे क्या जाके बाइंड होता है? अवर हेलिकेज एंड फर्दर एंजाइम्स बाइंड ओवर देयर. क्लियर? सो फर्स्ट, दैट्स व्हाई अगर डायरेक्टली हम इंजेक्ट करेंगे तो इट्स अ वेस्ट. तो फर्स्ट वी हैव टू डू व्हाट ओवर हियर बाय यूजिंग. पहले ये प्लाज्मिड को क्या करना पड़ेगा? कट. कट के लिए कौन सा एंजाइम चाहिए? हियर हेलिकेज नहीं, ये डीएनए को कट करने के लिए बोल रहे हो. हाइड्रोजन बॉन्ड्स कट करने के लिए नहीं बोल रही हूँ. बोलिए कौन सा चाहिए? फ्रेगमेंट्स करने के लिए कोई पूछे तो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस. डीएनए स्ट्रैंड्स को सेपरेट करने के लिए पूछे तो क्लियर. फ्रेगमेंट्स बनाना है देन व्हिच वन इज नीडेड? रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस. सो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से इसको कट करना है, राइट? इसकी ORI साइट कट नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज क्या होगा? रेप्लिकेशन प्रोसेस स्टॉप. अदर देन ORI साइट कट करते हैं बाय यूजिंग रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, सो दैट एन गैप क्रिएट होगा. इन दैट पर्टिकुलर गैप दिस desired piece of DNA that introduced over here, right? And this fragments of DNA, bacteria and this insulin that join with each other by which enzyme? ज्वाइनिंग के लिए लाइगेज. लाइगेज से वो ज्वाइन हो जाएंगे. क्लियर? एंड देन दिस प्लाज्मिड अगेन इंसर्टेड इनटू दैट होस्ट, राइट? प्लाज्मिड का होस्ट क्या है? बैक्टीरिया. एंड देन गिव सम टाइम. एज एंड व्हेन प्लाज्मिड, बैक्टीरिया का लाइफ स्पैन इकोलाई बैक्टीरिया का कितना है? सेल डिवीजन टाइम 1 इकोलाई. 20 मिनट्स. आफ्टर 20 मिनट्स न्यू इकोलाई, राइट? सो नाउ फर्दर इसमें जब सेल डिवीजन होगा तो इन दैट न्यू इकोलाई बैक्टीरिया विल बी फॉर्म, राइट? इन दैट दिस our desired piece of plasmid, ये भी क्या होता जाएगा? रेप्लिकेट, राइट? सो ग्रेजुअली द नंबर ऑफ कॉपीज कैन बी व्हाट? इंक्रीज. इसको और 20 मिनट्स दो तो 4 इकोलाइज मिलेंगे. 4 इकोलाइज में जो डिजायर्ड पीस ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट है इंसुलिन का, उसकी 4 कॉपीज बन गई. यस और नो? सो दिस वन ऑफ द वर्ड इज देयर, दैट वर्ड वी कॉल वेक्टर. कौन सा वर्ड है? वेक्टर का मीनिंग होता है कैरियर. वेक्टर का मीनिंग क्या है? कैरियर, राइट? मलेरियल डिसीज. मलेरियल डिसीज किससे होता है? प्लाज्मोडियम से होता है. बट उसका कैरियर कौन है? जो हमारे तक लेके आता है, हमारे ब्लड में इंजेक्ट कर देता है. एनोफिलिस, फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो, राइट? तो फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो कैरी दैट प्लाज्मोडियम टू अस. वैसे ही प्लाज्मिड हियर, that plasmid carry the desired piece of fragment of DNA in which insulin genes are present towards the which one? Bacteria, right? So that as and when bacteria replicate करेंगे तो ये plasmid भी क्या होगा? replicate. जितने बैक्टीरिया के नंबर होंगे उसके प्लाज्मिड के नंबर्स भी क्या हो जाएंगे? इंक्रीज. plasmid number increase meaning our desired piece of fragment of DNA also increase. समझ में आया? यस और नो? सो दिस प्रोसेस वी कॉल एम्प्लीफिकेशन. इसको क्या बोलेंगे? एम्प्लीफिकेशन. एम्प्लीफाई है ना, इंक्रीज इन नंबर. सो एम्प्लीफिकेशन प्रोसेस बाय यूजिंग द विच वन? वेक्टर्स. बाय यूजिंग द वेक्टर्स. Vector can be used either bacteria or the yeast. Which organism? Or yeast. बैक्टीरिया एंड यीस्ट. मैंने आपको एक कंसेप्ट एक्सप्लेन किया यहाँ पे. बैक्टीरिया एंड यीस्ट. बैक्टीरिया के लिए जो था, इसके लिए नेम है बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, जो प्लाज्मिड के रेफरेंस से ही लैब में क्रिएट किया है. दैट्स व्हाई द नेम गिवन इज व्हिच वन? आर्टिफिशियल क्रोमोसोम. बट दैट दिस वन इज व्हाट? ऑर्गेनिज्म और वेक्टर? वेक्टर, राइट? प्लाज्मिड के जैसा ही ये वेक्टर क्रिएट किया इन लैब, राइट? जिसके अंदर हमें जो डीएनए के फ्रेगमेंट्स किए थे, कम बैक टू सीक्वेंस एनोटेशन, राइट? दैट डीएनए इज देयर. डीएनए फ्रेगमेंटेड बाय यूजिंग RE. RE मीनिंग रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, राइट? वही फ्रेगमेंट, हर एक फ्रेगमेंट को ऐसा नहीं कि लाइक ये इकोलाई, सॉरी ये प्लाज्मिड है, राइट? 1 प्लाज्मिड 1 डीएनए फ्रेगमेंट. 1 प्लाज्मिड
वन डीएनए, तो जितने फ्रेगमेंट्स है वो हर एक का डिफरेंट हमें कल्चर करना है। क्लियर? सो फर्स्ट वन बैक, फुल फॉर्म क्या है? बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, एंड अदर यीस्ट ऑर्गेनिज्म इज यूज्ड जिसका नेम है यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। सी सर्टेन फ्रेगमेंट्स, ये रैंडम फ्रेगमेंट्स है। डीएनए के कैसे फ्रेगमेंट्स बनेंगे? रैंडम, दैट शुड नॉट बी इन इक्वल साइज के हर एक इतने ही साइज का, नो, वन कैन बी लार्जर, अदर कैन बी शॉर्टर। लार्जर फ्रेगमेंट्स के लिए जनरली यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम इज यूज्ड एज अ वेक्टर। लार्जर फ्रेगमेंट के लिए क्या यूज करते हैं? YAC। शॉर्टेस्ट फ्रेगमेंट्स के लिए क्या यूज करते हैं? BAC, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, राइट। ह्यूमन जीनोम के लिए दोनों को यूज किया था एज अ वेक्टर बिकॉज फ्रेगमेंट्स आर रैंडम, फ्रेगमेंट्स आर रैंडम, कुछ शॉर्ट थे कुछ लॉन्ग थे। क्लियर? Yes or no? So now next is a which one over here? So first fragments introduced into the vector, and vector से वो कहाँ पे चले जाएंगे? होस्ट में, होस्ट में जाके रेप्लिकेट करेंगे, एम्पलीफाई करेंगे। तो आप देखिए एक ही फ्रेगमेंट है बट अभी उसकी कितनी कॉपीज बन गई? मल्टीपल कॉपीज दिया है यहाँ पे, राइट। मल्टीपल कॉपीज आर नीडेड। Now multiple copies, once the multiple copies are formed, then that fragments should be sequenced, right? पहले यहां तक के स्टेप, फर्स्ट आइसोलेशन किया, सेकेंड डीएनए को क्या किया? फ्रेगमेंट्स by using RE. थर्ड is a which one? Each fragment inserted into that vector to host, for which process? Amplification. Now we have एक ही डीएनए सैंपल लिया था बट इसके हमारे पास अभी मल्टीपल कॉपीज है इन अ फ्रेगमेंटेड फॉर्म, राइट। नाउ ईच फ्रेगमेंट वो एनालाइज होना चाहिए, हर एक फ्रेगमेंट की हमें सीक्वेंस लर्न करनी है। सो वो सीक्वेंस कैसे लर्न करेंगे अभी? दैट इज द मेन क्वेश्चन। सो वन ऑफ द साइंटिस्ट दैट इज सेंगर, Francis Sanger, one of the scientists, right over here, Frederick Sanger, one of the scientists over here, he developed one method. One of the method, you know, हीमोग्लोबिन का एक मेथड, बीटा ग्लोबिन चेन में आपको दिया था कि फर्स्ट नंबर पे कौन सा अमीनो एसिड था? सिकल सेल एनीमिया के डायग्राम में फर्स्ट पे ग्लूटामिक एसिड, सेकंड पे वेलाइन, हिस्टीडीन कौन सा था? फर्स्ट पे वेलाइन, सेकंड हिस्टीडीन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ नॉर्मल है ग्लूटामिक एसिड, एंड सेवेंथ पे ऐसे सीक्वेंस दिए थे। तो ये कैसे पता चला कि ये वन बाय वन यही सीक्वेंस है इन ईच प्रोटीन डिफरेंट, राइट। सो वन थिंग, साइंटिस्ट सेंगर, साइंटिस्ट का नेम क्या है? सेंगर। सेंगर डेवलप दिस मेथड, राइट। उन्होंने एक ऑटोमेटेड सीक्वेंसर मशीन बनाया था इन विच व्हेन वी कीप दैट फ्रेगमेंट, सो वो फ्रेगमेंट कंप्यूटर में क्या हो जाए? स्टोर, मीन स्टोर इन अ विच सेंस इन द फॉर्म ऑफ डेटाबेसेस। दिस इज द टेक्निक, right? So in that, here that's the, can you make out that in photograph this thing is mentioned? So that's फ्रेडरिक सेंगर का जो यहाँ पे कंसेप्ट था, right? सेंगर की जो मेथड है, मेथड का नेम याद रखना फॉर नीट एग्जाम, that method name is there, that is chain termination method. Which one? Chain termination method, right? Chain termination method, right? In that always remember that's a chain termination, जो fragments था ना, right? ये extra है आपके लिए, higher level है। As and when fragments are formed, फ्रेगमेंट्स जो थे, फ्रेगमेंट्स को एक लास्ट न्यूक्लियोटाइड, स्पेशल न्यूक्लियोटाइड ऐड करते हैं जिससे ये पता चल जाए कि ये फ्रेगमेंट का रीडिंग कंप्लीट हो गया है, ये फ्रेगमेंट का रीडिंग क्या हो गया है? कंप्लीट। वो मॉडिफाइड न्यूक्लियोटाइड ये मशीन में ऐड था, चेन टर्मिनेशन, यू नो टर्मिनेशन वर्ड नाउ, राइट? यस। सो चेन टर्मिनेशन मेथड इज डेवलप्ड बाय सेंगर। सेंगर ने प्रोटीन्स के लिए किया,
बट अदर साइंटिस्ट जो ह्यूमन जीनोम पे वर्क कर रहे थे उन्होंने यही प्रिंसिपल को यूज किया एंड प्रिपेयर्ड automated DNA sequencer machines, right? Which machines? Automated DNA sequencers machine. Automated DNA sequencer machine, in that automated DNA sequencer है. So as and when fragments insert in that, keep in that machine analyze कि first इसमें adenine है, thymine है, guanine है, cytosine है, A है, T है, whatever, right? So like that, this machines read that and the information, right, that's stored in the form of databases. Clear? So human genome, in that the first one, that is isolation of DNA. फिर second step क्या था? Fragments. Third में each fragment should be enter into vector to host, for which process once the amplification done, right? See, क्यों इतने सारे fragments चाहिए? Because suppose एक भी fragment by mistakenly lost हो गया, degrade हो गया, whatever, right? ये भी तो ये method one by one they develop this thing, right? So to avoid this kind of errors over here, multiplication amplification is needed. Now one by one that fragments are added. Fragments are random. Random fragments की वजह से एक overlapping sequence form होता था. क्या form होता था? Overlapping. Fragments तो random है, isn't it? Right? तो fragments जो random है उसको sequence में करने के लिए this automated DNA sequencers machines help, जिसमें overlapping regions को वो identify करता. क्या करता? Overlapping regions को क्या करना था? Identify. Overlapping regions meaning what over here? That suppose one of the fragment is there here, that A T T C G G, right? जो second fragment होता था, in that the sequence like that C G G C A T C A, like that. जो third fragment है, in that T C A T, like this, right? तो this overlapping portion, ये दोनों overlapping part है, right? That join with each other. तो इससे sequence last में ये बनता है A T T C G G, then this one C A T C A. You know T C A repeat हो रहा है यहाँ पे. So next is a which one? T A T A. Right? So by this way, this machines help in to make that entire DNA sequencing. Right? Overlapping fragments are formed. RE enzymes जो है that helps to make this thing, right? And overlapping fragments को, right? उन्होंने क्या किया? Join किया, and by that way gradually that's join one by one fragment with each other and develop entire DNA sequence. बोलो.